Hello everyone, I am Dr. Lalit Kumar Gupta working in Krishna Engineering College Ghaziabad in Applied Science Department. I welcome you once again in my lecture series Relativity. Today we are going to discuss a very important topic, Lorentz transformation equation. Actually this transformation equation is important due to with the help of this transformation equation we can derive so many other derivation like length contraction, time dilation, variation of velocity, addition of velocity, massless particle, and this is the key of the other derivation. So we will try to explain what are the Lorentz transformation equation. So before we start the Lorentz transformation equation, we should know the postulate of special theory of relativity, because this particular Lorentz transformation is based on the postulate of special theory of relativity. So what is the postulate of special theory of relativity? In 1905 Einstein present his famous theory of relativity. It is based upon the two following postulate. Actually the first postulate is the law of physics are same. The law of physics are same in all inertial frame of reference. So it is also known as a principle of relativity. So this means that if any physical quantity, what do you mean that? This means that if any physical quantity like kinetic energy, angular momentum, it is conserved in any frame of reference, it would be conserved for all frame of reference. This means that. So according to this postulate, there is only relative motion and no absolute motion. It is impossible to find the absolute motion in relative to which motion of the other could be detected. So point to be very clear, कि suppose we have two frame of reference and suppose we measure kinetic energy in frame S. So parallelly जब we measure in O dash frame of reference, so the kinetic energy are the same for second frame of reference. So this means that the law of physics for same for all inertial frame of reference. And the second postulate, the speed of light in free space has the same value in all inertial frame of reference, यानी कि the speed of light is a universal constant. And everybody know that the velocity of light is constant for each and every inertial frame of reference, and there is no any doubt about this, the velocity of light. So these are the two main postulate of Lorentz transformation equation. So what is the Lorentz transformation? The question arises that on actual the Lorentz transformation equation that can change the space time coordinate. Space time coordinate means x, y, z, t into x dash, y dash, z dash and t dash in a such a way that the speed of light is constant. So this is the main concept. What is the definition of Lorentz transformation equation? So you just write down the transformation equation that can change space time x, y, z, t into x dash, y dash, z dash in a such a way that the speed of light is constant. So this is a very simple equation. So here we transform from one of coordinate system to another coordinate system. Means x, y, z, t is the coordinate of S frame, and x dash, y dash, z dash and t dash is the coordinate of the second frame of reference. So now let's try to originate the formula of Lorentz transformation equation for x dash, y dash, z dash and t dash. So let's start. Suppose we have two frame of reference. Okay, first frame of reference is S and second frame of reference is S dash. Okay, S dash frame moving with v velocity in positive x direction, which is near about the velocity of light. Suppose any event at point P
will be obtained at any instant time t. So this particular point, the event will be measured by the observer O and the measure by the observer O dash. What will be the observation? There are two conditions when both the observer at the same point. Okay, suppose the observer O and O dash at the same point when t is equal to t dash is equal to 0, when time is no more separate. यदि टाइम यदि अलग नहीं हुआ है तो यदि दोनों ही ऑब्जर्वर एक जगह, सपोज मैं यहाँ पे खड़ा हूँ और दूसरा भी ऑब्जर्वर यहीं खड़ा है, उस कंडीशन पे द मेजरमेंट ऑफ द इवेंट आर सेम, देयर इज नो एनी टाइप ऑफ चेंज. बट एट द सेम टाइम सपोज द सेकेंड ऑब्जर्वर ओ डैश इज मूविंग विद v velocity and observed the particular event by the both observer. The both observer observe the event in different coordinate system. So what will be the action thereafter? So here is the conclusion is that the measurement in the x direction, because the second person moving in x direction with v velocity, so the measurement in x direction made in frame s is directly proportional to s dash. यानी कि जो व्यक्ति, सपोज मैं यहाँ खड़ा हूँ और दूसरा व्यक्ति मूव करके वहाँ पहुँच गया यहाँ, तो उस व्यक्ति यहाँ से खड़ा हुआ व्यक्ति ऑब्जर्वर ओ डैश जब ऑब्जर्वर ओ को देखेगा तो वो उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा. कहने का मतलब ये है कि यदि यहाँ दो फ्रेम ऑफ रेफरेंस से आपको दिखाई दे रहा है कि यदि कोई ऑब्जर्वर v वेलोसिटी से t टाइम में ये x डिस्टेंस कवर करता है, ओके, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम. यानी कि एक व्यक्ति यहाँ से यहाँ पहुँच गया, यहाँ पहुँचने के बाद ऑब्जर्वर ओ डैश किसको लुक आफ्टर कर रहा है, ओ को देख रहा है, तो वो ये देख रहा है कि मैं ऑब्जर्वर ओ से कितनी दूरी पे आ गया. तो ऑब्जर्वर ओ डैश जो है ओ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, क्योंकि हमने पहले ही कह दिया द लॉ ऑफ फिजिक्स आर सेम फॉर ऑल इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस. यदि व्यक्ति इसको यहाँ से देखे तो इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, और यदि ये वाला ऑब्जर्वर इधर चला जाए और आगे जाके फिर इसको देखे तो इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा. यानी बोथ द केसेस आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर. सो यहाँ से जो व्यक्ति गया एक्स डायरेक्शन पे, वो अब स्टेशनरी स्टेट पे जो ऑब्जर्वर है उसको ऑब्जर्व कर रहा है, तो क्या होगा कंडीशन, हमने पहले बोल दिया कि s इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू s डैश. सो s दे यानी कि अब ये वाला व्यक्ति दे रहा है, तो उसके लिए हमारा फॉर्मूला हो गया x डैश इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x माइनस वी टी. कितने डिस्टेंस दूर था, इतने डिस्टेंस. सो x डैश इज इक्वल टू प्रोपोर्शनल साइन हटा दिया, x माइनस वी टी. So this is the simple first equation on behalf of first postulate कि लॉ ऑफ फिजिक्स आर सेम फॉर ऑल इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस. तो ये वो व्यक्ति जो ऑब्जर्वर इधर गया वो अब देख रहा. अब यही सेम इवेंट हम अपोजिट डायरेक्शन पे कर लें, यानी कि इन्वर्स करें कि अब ऑब्जर्वर ओ डैश कॉन्स्टेंट पे है, अब ऑब्जर्वर ओ मूव कर रहा है राइट डायरेक्शन पे, तो अपोजिट डायरेक्शन पे करेगा तो इसका अपोजिट लिख दीजिए. एज पर द पॉस्टुलेट x डैश का हो जाएगा x k, x का हो गया x डैश, माइनस का हो गया प्लस, बिकॉज v इज द कांस्टेंट वेलोसिटी v एंड t डैश. सो दिस वन इज अवर सेकेंड इक्वेशन एज पर द पॉस्टुलेट. तो पॉस्टुलेट में हमने कहा था लॉ ऑफ फिजिक्स आर सेम, आपको सेम दिखाई दे रहा है, ये फॉर्मेट और ये फॉर्मेट सेम है, बेल कोऑर्डिनेट चेंज हुआ है. सो हियर substitute the value of x dash in इक्वेशन सेकेंड में. यहाँ से वैल्यू हम इस पे सब्सिट्यूट करेंगे x डैश पे, तो वैल्यू हो जाएगी x इज इक्वल टू k x माइनस वी टी प्लस वी टी डैश. ओके, सो इसको चेंज कर देंगे, इसको इधर ले आएंगे x अपॉन के. ओके, ये हो जाएगा, या आप इसको किसी भी तरीके से कर लीजिए, इसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिए पहले
x इज इक्वल टू के एक्स माइनस के वी टी प्लस वी टी डैश। इस तरह से भी आप इसको कर सकते हैं। दोनों तरीके से मेथड, आप किसी भी एक मेथड से आप इसको इम्प्लीमेंट आपको करना है, या आप यहाँ आप देख लीजिए दोनों मेथड किस तरह से किया गया है। एक बार वंस अगेन आई सब्स्टिट्यूट द वैल्यू। हमने क्या किया है, यहाँ से x डैश की वैल्यू को यहाँ हमको सब्स्टिट्यूट करना है। ओके, तो x अपॉन k, ओके, x डैश की वैल्यू यहाँ पे क्या है, k x माइनस वी टी प्लस वी टी डैश। ओके, अब इसको हम रीअरेंज कर रहे हैं। ये हो गया x अपॉन के, इधर ले आए। अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, के एक्स माइनस के वी टी प्लस वी टी डैश। ओके, अब यहाँ से हमको रीअरेंज फिर से करना है, याद रखिएगा। तो हम इसको रीअरेंज भी फिर से हम कर सकते हैं। तो रीअरेंज करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, आप चाहें तो इसको रीअरेंज भी कर सकते हैं, अदरवाइज़ हमको वैल्यू निकालना है टी डैश का। तो यहाँ वी टी डैश के फॉर्म में लिख लीजिए, वी टी डैश इज इक्वल टू, अब ये सारी चीज़ ट्रांसफ़र करेंगे इस तरफ हम, x अपॉन के, ये ट्रांसफ़र इधर करेंगे तो हो जाएगा माइनस के एक्स, ये माइनस है उस तरफ जाएगा तो हो जाएगा के वी टी। ओके, अब इसमें हमको टी डैश की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो टी डैश की वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिए, टी डैश इज इक्वल टू, डिवाइड कर दीजिए x अपॉन के वी माइनस के एक्स अपॉन वी प्लस वी से वी कैंसिल आउट हो गया के टी। ओके, अब हमको क्या करना है कि इसको रिवर्स ऑर्डर में केवल आपको लिखना है अपने कन्वीनियंस के लिए, कि के टी पहले इसको लिखेंगे के एक्स अपॉन वी प्लस एक्स अपॉन के वी। सो टी डैश इज इक्वल टू के टी, यहाँ से इसमें से कॉमन निकालना है आपको, के एक्स माइनस वी कॉमन निकाल लीजिए इन दोनों में से। तो यहाँ अंदर आपके ब्रैकेट में रहेगा 1 माइनस 1 अपॉन के स्क्वेयर। सो दिस इज़ द सिंपल टी डैश की वैल्यू आपकी आ गई। तो ऑन बिहाफ ऑफ फर्स्ट पोस्टुलेट आपने टी डैश निकाल लिया। पॉइंट टू बी नोटेड हियर, we already got the transformation equation for y dash and z dash because both the axes are parallel। तो यहाँ पे आप डायरेक्ट लिख सकते हैं ट्रांसफॉर्मेशन y इज इक्वल टू y डैश इज इक्वल टू y एंड z डैश इज इक्वल टू z। इसको आपको निकालने की ज़रूरत नहीं है। अब हमारे पास फाइंड आउट करने के लिए लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन बचा केवल x डैश एंड t डैश। तो हम निकालेंगे अकॉर्डिंग टू सेकेंड पोस्टुलेट। फर्स्ट पोस्टुलेट आपने निकाल लिया, और अकॉर्डिंग टू सेकेंड पोस्टुलेट क्या था, द स्पीड ऑफ लाइट इन फ्री स्पेस हैज़ द सेम वैल्यू फॉर ऑल इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो सपोज एट एनी इंस्टेंट टाइम एट पॉइंट ओ, यानी ऑब्जर्वर ओ के पास एक लाइट इस तरह से स्प्रेड होती है। लाइट जब स्प्रेड होगी तो एक पर्टिकुलर डिस्टेंस तक स्प्रेड होगी v वेलोसिटी के साथ t टाइम में, तो वो हो जाएगा x इज इक्वल टू सी टी। अब यही इवेंट को सेकेंड ऑब्जर्वर व्हेन ऑब्जर्व विथ v वेलोसिटी, तो व्हाट हैपेंड, इसी को ऑब्जर्व कर रहा है मूविंग के साथ, तो x हो जाएगा आपका x डैश, c कांस्टेंट है, यूनिवर्सल कांस्टेंट है, और t डैश हो गया। तो इन दोनों वैल्यूज़ को आपको इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकेंड में रखना है। दिस वन इज इक्वेशन थर्ड। तो सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x एंड s डैश, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x एंड x डैश इन इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड में आपको रखना है। इन इक्वेशन को x और x डैश की वैल्यू की इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड में रख दीजिए। तो आप देखिए यहाँ फर्स्ट इक्वेशन है x डैश की वैल्यू कितनी है, सी टी डैश। तो आप यहाँ लिखेंगे सी टी डैश इज इक्वल टू के, ओके, x की वैल्यू आपकी है सी टी माइनस वी टी। ओके, फिर आ गया ये सी टी, एक्स की वैल्यू के सी टी डैश प्लस वी टी डैश। इक्वेशन नंबर हो गया फोर्थ, इक्वेशन नंबर फिफ्थ। अब इन दोनों इक्वेशन को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, मल्टीप्लाई ईच अदर, मल्टीप्लाई इक्वेशन फोर्थ एंड फिफ्थ, दोनों का मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा तो कितना हो जाएगा,
सी स्क्वेयर टी डैश इज इक्वल टू, ये हो गया के स्क्वेयर। अब यहाँ से टी कॉमन निकालेंगे, यहाँ से टी डैश, तो हमारा टी और टी डैश तो कॉमन निकल गया, ब्रैकेट में रहा आपका सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर, तो ये कैंसिल आउट हो गया आपका। सो के स्क्वायर की वैल्यू आ गई आपकी सी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर। तो यहाँ से भी आप कॉमन निकाल सकते हैं सी स्क्वायर, तो सी स्क्वायर कॉमन निकालेंगे तो वैल्यू बच जाएगी 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, सी स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल। सो के स्क्वायर की वैल्यू हो गई 1 अपॉन 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। ओके, सो के की वैल्यू आ गई आपकी 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। सो दिस इज द मैजिक फैक्टर, this is the magic factor which is responsible for the length contraction, time dilation and variation of velocity and so many other phenomena. So in particular relativity, the main hero of this particular chapter is k, where k की वैल्यू आपको पता चल गई, k की वैल्यू हो गई 1 upon under root 1 minus v square upon c square. So substitute this value k in equation number first. वी गॉट द फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। जैसे इसको हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारे पास एक वैल्यू आपकी निकल के आ जाएगी एक्स डैश। ओके, ये दिया एक्स डैश, के की वैल्यू कितनी है 1 अपॉन अंडर रूट, तो इसको आप रख दीजिए एक्स माइनस वी टी अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। सो दिस वन इज द फर्स्ट लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। And second already got it, y dash is equal to y and z dash is equal to z। तो तीन हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन हमने फाइंड आउट कर लिया है। एंड लास्ट वन t डैश हमको निकालना है, तो t डैश निकालने के लिए वंस अगेन वी यूज़ द फार्मूला k स्क्वेयर। यहाँ से हम यूज़ करेंगे k स्क्वेयर इज इक्वल टू, यहाँ रखना है हमको t डैश की वैल्यू निकालने के लिए। व्हेन वी सब्स्टिट्यूट द k स्क्वेयर वैल्यू, तो मैं यहाँ से इसको रख रहा हूँ अगेन, I rub this portion using this portion k square. K square is equal to 1 upon 1 minus v square upon c square, और यहाँ वैल्यू दी हुई है 1 upon k square के फॉर्म में। सो वी कन्वर्ट k square इन फॉर्म ऑफ 1 upon k square, तो 1 upon k square इज इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, और यहाँ वैल्यू को दी है 1 माइनस 1 अपॉन k स्क्वायर के फॉर्म में। सो वी कन्वर्ट दिस इक्वेशन अगेन, इसको ट्रांसफ़र कर दीजिए इधर, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 1 अपॉन के स्क्वेयर इज इक्वल टू वी स्क्वेयर अपॉन सी स्क्वेयर। अब इन वैल्यू को आप यहाँ आप सब्स्टिट्यूट करेंगे इस जगह पे, 1 माइनस 1 अपॉन के स्क्वेयर की जगह पे सेम आ गया, ये वैल्यू आ गई आपकी 1 अपॉन 1 माइनस के स्क्वेयर। आप सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, टी डैश की वैल्यू निकल के आ जाएगी के टी माइनस के एक्स अपॉन वी, 1 माइनस 1 अपॉन के स्क्वेयर की जगह आपका आ गया वी स्क्वेयर अपॉन सी स्क्वेयर। तो वी सी वी कैंसिल हो जाएगा, तो टी डैश की वैल्यू हो जाएगी आपकी, यहाँ से आप सॉल्व करोगे तो टी माइनस एक्स वी अपॉन सी स्क्वेयर अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वेयर अपॉन सी स्क्वेयर। सो दिस इज द फोर्थ ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। फर्स्ट तो हो जाएगा टी डैश इज इक्वल टू टी माइनस एक्स वी अपॉन सी स्क्वेयर अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वेयर अपॉन सी स्क्वेयर। सो दिस इज द सिंपल ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन x dash, y dash, z dash and t dash. So with the help of these four transformation equation, we can easily derivate the Lorentz transformation equation, time dilation equation and variation of mass with velocity, massless particle and so many other phenomena of related to relativity. So this is the Lorentz transformation equation which is very important in exam point of view in 10 number questions. Okay, in our next topic we will discuss the some numerical problem on base of this particular Lorentz transformation equation. Okay, thank you so much.